आ रही है। So basically, in this the presentation, we will understand the basic of certain. So I am Aditya Jain, pursuing MBA in cyber from Chitkara University. This presentation covers the certain for all central government in India. This is issued under Section 70B of the IT Act 20,000 by MEIT by Ministry of Electronics and these many कैमरा ऑन कर topics. लीजिए सर। क्या चीज? कैमरा ऑन कर लीजिए। So basically, these many topics we will cover. It might take like a week or so. Basically, we will continue remaining topics in the next uh, presentation on next day maybe. So introduction will be like India has 80 plus crore digital nagris online today, expected to reach 120 crore soon. This scale makes government ICT infrastructure a prime target. So ICT is your and communication. Cyber threats like malware, ransomware, phishing, DDoS directly compromise the CIA triad. So CIA triad is basically a triangle image or like a triangle structure consists of confidentiality, integrity, and availability. So confidentiality means data must be confidential. Integrity means the data must be altered by only the authorized person. And availability means the data must be available to the whenever required. So this is CIA triad, which uh, is the most important thing in IT. CERT-In was established under the Section 17B of IT Act 2000 to collect, analysis, and response to cyber incident and issue these. These are inorganic. They are updated as threat evolve. So this applies to all central ministries, departments, secretariats, and their subordinate offices and PSEs under the Government of India Allocation of Business Rules 1961. Entities must evolve from the baseline to fully cyber resilient status aligned with the Cyber Crisis Management Cyber Crisis Management Plan. We call it CCMP in short. The Annexure 1 guidelines for CISO and CISO is your chief officer, which is the topmost level or role in the industry as far as security is concerned. And employees are a additional compliance layer. Audit frequently, like we have to audit frequently, like we are doing in NIC offices, statewide and worldwide. So internal auditors 6 months, external we are certain implied auditor every year. So basically we are following this every year by the certain implied auditor team. So our CDAC is responsible for that. We have contracted with the CDAC for the audit every year. And internally we can do it like I will share the checklist later in this presentation. So this must be done. Senior management must nominate a CISO and register there as a point of contact with certain. So senior most manager will take care of the CISO and appoint a CISO where the CISO is like having around 10 to 15 years plus experience in the field. So that person will be eligible for the CISO roles. So here we can say like Tarkyoshar sir will be the CISO. This is a under the
April 2022 directions. A dedicated cybersecurity team must be separate from IT operations. They cannot be the same team. So basically, a dedicated IT team must be there in the organization, separate from the IT operation teams. So basic IT operation is will be the separate and the will be separate so that the integrity will be maintained. They cannot be the same team. Key CISO team duties will be like monitoring alerts, incident response, enforcing policy, running awareness drills, and liaising with certain. So these are the duties CISO must follow. The organization must maintain a live hardware and software integrity with patch levels and use automated scanning to detect unauthorized devices. So like you can perform an automatic network scan on your network itself. Basically, a tool required will be Angry IP scanner you can use to scan the devices and verify at your end, like whether the device is genuine or not. Later we will discuss on this. The CISO is not just a technical role, it's a governance and leadership function. CISO must ensure that the IR plan, IR is your incident response plan, is tested. BCP/DR is your business continuity plan and disaster recovery. So every office must have the business continuity plan on hand and disaster recovery plan in case of like major disaster like cyclones, tornado, or any like natural disaster happens. So we need to like recover it from as per the plans we have implement those and all certain advisories are act upon. So a key point often missed, CISO must report CCMP. CCMP is Cyber Crisis Management Plan status to senior management, not just to IT teams. All vendor contracts must have IS requirements built in. The CISO is accountable for third-party risk. Information IS requirements built in. The CISO is accountable for third-party risk. The most important principle, define your parameter first. Like what are your devices, network, firewalls, that kind of stuff. Define your parameter first, including internal networks and links with third parties. Firewall rule set must follow defined default deny. So basically, all the firewall rules must implement the default deny in the first book. Only the whitelisted port protocols and applications are allowed. So basically, in future, you might be getting the your hands on with the router, next generation router, which comes with the firewall inbuilt. So your first thing will be like denied all the default and only allow whitelisted ports, protocols, and application. IDS IPS is your intrusion prevention system and intrusion detection system. This is handled by the security team. So basically, this Sentinel-1 will be responsible for IDS and IPS. So if we merge IDS and IPS, we comes with the XDR, extended detection and response. So we are having extended detection and response. As per the Sentinel-1 is capable of that much. Must monitor both southwest internet to LAN and west east-west to internal lateral traffic. So lateral traffic will be like if a particular PC, if you share your PC on remote, like this is your PC, and if you share this on the RDP protocol or some kind of remote desktop tools. So this is your another PC on the network, and this is connected with this PC on the network, like so on.
So if a particular PC person is getting access to this particular PC, that the lateral movement might happen. So basically, this person can scan the network on the first go and get to know that these many are devices they are using. Also, they can mass scan the network using various tools like Angry IP Scanner or Nmap command line interface and graphical interface tools. So they will get to know that you are using a webcam, which is a IP connected webcam. You are using a particular router. They can also gather the of the router by tracing their like Nmap will be give you Nmap can give us the relevant information regarding the device. MAC addresses we can gather using the particular. If we got the access on the internal network, we can just like move with the lateral movement. Most modern attacks move laterally. So this is most important things like do not give the remote access to anybody without even always verify, do not trust anybody. And I see DNS we are like that. This is the default DNS we are using, and we must be the default. All public DNS like 8888 must be blocked. So 8888 is the Google default DNS. This must be blocked in the internal networks. So SIM Sir? lock must be written. जी हेलो जी बताइए. काइंडली जो है से डायग्राम जो दिए ना उस पे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिए. ये तो मैं पढ़ लूंगा, आप पीपीटी देंगे. ये कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, अदर नेटवर्क्स में कैसे जा रहा है, कैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवेल काम कर रहा है, ये दोनों फायरवेल आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इसके बारे में बताएगा सर. ये मतलब आप चाह रहे हो कि जैसे ये पता चल रहा है, मेरा माइंड से ओवरफ्लो हो रहा है. आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो देख करके हम लोग भी पढ़ लेंगे सर. काइंडली ये फ्लो जो आपने बनाया ना चार्ट, इसके बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करें कि सारे लोग समझे आखिर ये कैसे वर्क कर रहा है. यहाँ पे दो नेक्स्ट जनरेशन का फायरवेल लगा है. हाउ टू कम्युनिकेट ईच अदर, ये कैसे यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है. ये दो फायरवेल लगाने की आपको क्या प्रैक्टिकल चाहिए ना अभी सर. तो नहीं सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर जो पढ़ा रहे हैं. कोई बात कुछो नहीं नहीं है. समझ में ओवरव्यू आ है यार. स्कूल कॉलेजेस में भी तो ऐसे ही देते हैं यार. सर. यहाँ पे उसके बाद स्कूल आपको अगर आप तो पढ़ा रहे प्रैक्टिकल हैं दिया सर, जाएगा. आप हमें आपको एक्सप्लेन बेसिक करेंगे. अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ अभी बस. लो देखो यार, एंग्री आईपी स्कैनर एक टूल है अपने पास. ये हर कोई डाल सकता है अपने पास. अब जैसे किसी ने आपका रिमोट एक्सेस लिया है वहां पे, ये आपको शो हो रही है ना स्क्रीन. जी 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 जी. अब जैसे ये है आपका, जैसे मान के चलो 0.0 स्कैन करना है आपको. ये टूल मैंने चला दिया बैकएंड पे. ये /24 का मैंने कर दिया डिफॉल्ट. अब देखते हैं क्या क्या स्कैन करता है. इसने रिजल्ट दिए नहीं है. सुबह मेरा ये रीस्टार्ट हुआ ये. एडवांस आईपी तो- स्कैनर अच्छा चलता है इसमें. हाँ, एडवांस आईपी स्कैनर भी एक, एंग्री आईपी स्कैनर भी है. बाकी ये जो CLI टूल है ना, एनमैप वगैरह, वो ज्यादा अच्छे से गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन. अभी ये क्या देगा हमें, होस्ट नेम दे देगा और ये बता देगा कि होस्ट लाइव है कि नहीं. बाकी ये CLI कमांड टूल्स हैं, वो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देंगे बेसिकली कि नेटवर्क में चल क्या रहा है, कौन कौन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन कौन नहीं, और क्या उनका होस्ट नेम है, क्या आईपी है, और वो किस इंटरप्ट सर्विस करना चाहेंगे प्रोवाइडर है. आदित्य सर. सर पटना से आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे ना. ये चाह रहे हैं कि जिसके यहाँ राउटर लगा है वही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, कि हाउ मेनी आईपीज आर रनिंग इन योर पार्ट्स. जिसके यहाँ
राउटर है बेसिकली, वो राउटर तक ट्रैफिक अपना देख सकता है बेसिकली। अगर राउटर से और भी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो लेटरल मूवमेंट की तरफ मूव कर सकता है, फिर वो और ज्यादा तो जैसा मतलब है कि सर हमारे यहाँ L2 स्विच लगा हुआ है सर, L2 स्विच तेज लगा है हुआ ना। है कई हाँ जगह जो है से डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जानना चाहते हैं कि कितने आईपी जो है हमारे यहाँ दिए हुए हैं, और जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा आईपी है। समटाइम हाँ मुझे हाँ प्रॉब्लम होता है कि कैसे एक्सेस करें, कि कौन कौन सा आईपी चल रहा है, मुझे याद ही नहीं। समटाइम जो है से हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम मेजर ये होता है कि इलेक्शन टाइम में मोर जो है से आईपी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और बाद में जो है जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पूरे बिल्डिंग में फाइबर बिछा हुआ है, हमारे यहाँ वीक लेंथ में फाइबर बिछा हुआ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बंदा मेरा आईपी यहाँ से बिना हटाए के यूज कर रहा है। तो हम उसको कैच कर सकते हैं सर, ये सबसे बड़ा बिग चैलेंज है। अगर कोई एप्लीकेशन आप बताएं तो अच्छा होगा सर। सर, उसके लिए या तो दो चीजें हैं सर। उसके लिए या तो आप अपने लेवल पे एक टूल अपना डेवलप कर सकते हैं कि अलर्ट आ जाए मेरे पास, वरना हमारे टीम में और मतलब इधर तो कोई ऐसा टूल अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी है करना डेवलपमेंट फेज। आपका एक टूल आता है, ये आपका एंटी ग्रेविटी, तो ये गूगल की तरफ से है, बेस्ट है अभी तक। अगर आपको कुछ भी टूल डेवलप कराना, ऑटोमेट करानी है चीजें, तो आप इस पे आओ, इस पे ओपन एजेंट मैनेजर, आप ये आपका पूरा कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता एंटी है ये, मतलब ग्रेविटी पूरा, सर, है ना। सर क्या आपने बोला एंटी ग्रेविटी? हाँ हाँ, एंटी ग्रेविटी है सर, इसको आप यूज करके देखना, ये बेस्ट है सर ये अपने लेवल पे। अब आप इससे चाह रहे हो कि गिव मी अलर्ट ऑन एवरी डिवाइसेस connected or disconnected on the network IP 10.163.0.0/16। पूरा अपना 33 की सीरीज आ गई है, इसमें सर जितने भी होगा सब सर अलर्ट सर देगा। आपने ये 16 क्या दिया सर? /16 सबनेट है इसका यार, ये कैलकुलेट करना मेरे को भी नहीं आता अभी, लेकिन ये /16 ही है बाय डिफॉल्ट। इसमें जितने भी अंदर आईपीज आएंगे वो 16 के बेसिस पे आएंगे। जैसे 24 में होता है सर तो उसका सबनेट मास्क हो जाता है लास्ट में 0255 के बाद, हाँ तो ये सर, मैं ये 16 कहना है। चाहता कि आपके यहाँ तो 10 133 है, हर जिले में जी अलग अलग है। तो क्या हाँ, हम तो कोई नहीं, आपको दस एक बस सौ यहाँ पे आईपी डालनी चालीस है सर। हाँ, और स्लैश में 16 ही डालेंगे सर। हाँ 16 डाल देना, वरना आपका जैसे इसमें थर्ड ऑक्टेट आपका जैसे होगा, कितना है हाँ आपका? हाँ, 10 140 200 200 और 200। एक एक गेटवे हुआ, एक से स्टार्ट है। हाँ 200.0 डाल देना आप, गेटवे भी इसमें स्कैन अच्छा, करेगा वो। ठीक /24 ठीक डाल है देना, सर, तो लास्ट में ठीक अगर आप सबनेट 0 डालते होगे ना लास्ट में, हाँ 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 255.0, तो जी ये सर, ऐसे चलेगा सर। So ठीक। give me alert on every devices disconnected or connected on the network. Create a tool for the same. अभी ये मेरी लिमिट रीच हो गई है, तो मैं फ्री मॉडल यूज करता हूँ यहाँ पे। ये अगर आपके पास जियो का और इसका सब्सक्रिप्शन है एयरटेल का, तो आपको ये मिल जाएगा फ्री में। शायद जियो पे मिलेगा प्रीमियम इसका, प्रो यूजर के लिए। तो इससे आप A to Z जितने भी टास्क आपके डेली यूज है ना, वो सारे आप ऑटोमेट करा सकते हो। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर फाइल है, एक्सेल फाइल, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड करवाना है पीसी में, तो आप मैनुअली खोल के नहीं देखोगे, तो इसके थ्रू आप फाइंड करा लो कि फाइंड दिस पर्टिकुलर लाइक टॉपिक विच आई हैव सेव्ड इन एन एक्सेल फाइल ऑन माई पीसी, तो ये आपका फाइंड आउट करके आपको देगा। यस सर। अभी ऐसे इसने 125 लाइंस ऑफ कोड लिख दिए, पाइथन की स्क्रिप्ट बना दी इसने, .py एक्सटेंशन ने तो पाइथन की बनाई है, पाइथन ही बेस्ट है इसमें। आपको कोडिंग की नॉलेज जीरो चाहिए इसमें,
बस आपको ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, इसको पता नहीं आनी चाहिए कैसे क्या करना है। तो ये अब ये Nmap स्कैन चला रहा है, जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये बैकएंड पे चला रहा है। ये पूरा सबनेट पे चला देगा, ये 200 IP पे। ये सर नवादा से बोलना चाह रहे थे लोकेश्वर। हाँ हाँ। ये सर जब कोड हम चलाते हैं तो कोई भी कोड हम अगर पाइथन का अपना कस्टमाइज प्रोग्राम बनाते हैं फिर भी तो वो स्विच का और राउटर का वो यूजर क्रेडेंशियल्स खोजता है, वो तो बाकी कुछ नहीं बताता नहीं है बिना उसके। नहीं नहीं, बीइंग जैसे आप हैकर माइंडसेट की तरह सोचो ना, जैसे आप हैकर, आप चाह रहे हो कि ये नहीं सर, नेटवर्क में इसमें कैसे घुसे। टीम तो मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा ओपन, लेकिन हम अपना कस्टमाइज अगर प्रोग्राम बनाते हैं कि हम अपना मतलब लोकल ऑफिस का मॉनिटरिंग कर सके कुछ भी, तो उसके लिए तो सर कुछ होता ही नहीं है बिना लॉगिन पासवर्ड के। नहीं, जैसे आपका राउटर कौन सा है सर? राउटर सर मेरे यहाँ कोई नहीं है, राउटर तो लगा पड़ा है, और स्विच का है 2960, तो उसका भी कुछ ऐसा है नहीं, स्विच पर ही ऐसे चलते हैं, तो चल कुछ रहा नहीं, है वहां स्विच से। में अगर आपके पास एक भी पीसी या आप मेरे को रिमोट पे दोगे ना, तो उसमें मैं ये स्कैन करा के आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा, ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं स्विच के साथ। उसके मैक एड्रेस में आपको दे डिवाइसेज सकता तो हूँ। सर हम पता कर लेते हैं, डिवाइसेज हम पता कर लिए हैं, जैसे कौन सिस्टम क्या यूज कर रहा है नहीं कर रहा है उसका अगर हमको प्रोग्राम बनाना है तो उसके हाँ लिए सर यूजर देता है कि वो बिना यूजर के क्रेडेंशियल्स के नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेट क्लियर बताता नहीं है क्या है नहीं है, कौन सिस्टम क्या यूज कर रहा है। ये सर अभी एक्चुअली क्या है, इसमें स्पीकर का इशू है, थोड़ा सा आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं इसको करवाता हूँ जैसे भी है, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा, एक बार और बता दो क्या है बेसिकली डाउट, क्या है सर आपका? जैसे आपका नेटवर्क है, स्विच है। ऐसे सर मेरा मान लीजिए कि राउटर नहीं, स्विच पर ही काम चल रहा है, जैसे हाँ हाँ स्विच पर जैसे बहुत सारा कोई बैंडविड्थ यूज कर रहा है, कोई कोई प्रोग्राम यूज करता है कुछ करता है, तो मान लीजिए हमने तो उसका मैक और वो एआरपी टेबल से निकाल दिया था, कौन किस सिस्टम नेम मैक एड्रेस आईपी एड्रेस सब निकाल दिया, लेकिन हमने ठीक है। उसका बैंडविड्थ मॉनिटरिंग करने के लिए और साइट मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, तो हाँ वो बिना लॉगिन क्रीडेंशियल के सर कुछ दिखाता नहीं है। नहीं, तो सर आप इसमें ट्राई करना, वो नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए फिर क्या होगा ना, बेसिकली बैंडविड्थ मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है कि राउटर का एक्सेस चाहिए होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपको करना ये होगा कि आपका राउटर जो है फिर आपके पीसी से कनेक्ट होना चाहिए फिर डायरेक्टली। और एस तो फिर एस एन पीसी एम के पी का थ्रू भी आपका दिखा। ट्रैफिक आगे जाएगा, तो वो बैंडविड्थ मॉनिटरिंग फिर वहां से हो जाएगी इम्प्लीमेंट। बैंडविड्थ सर दिखाता है, लेकिन एक्यूरेट मतलब वो एक्यूरेट करने के लिए वो वही क्रेडेंशियल्स खोजता है, एक्यूरेट नहीं दिखा पाता है, मतलब जनरली दिखाता है चाहे ओवरऑल दिखाता है, नहीं तो सर क्योंकि आप स्विच ये को पेड टूल यूज करना, फिर आप देखना मेरे को, आप शेयर करना अगर देखना, फिर बताना मेरे को। जैसे इसने ठीक नेटवर्क स्कैन किया है, अभी इसमें ठीक है, क्या उसका गलती आंसर हुई है। आपको देंगे, चेक कीजिएगा। ये बेसिकली क्या करेगा, एक बीप साउंड प्रोड्यूस कर देगा जैसे कि डिवाइस कनेक्ट होगी और डिस्कनेक्ट होगी, और बाकी फिर ये बॉट दोबारा स्लीप हो जाएगा। ये उतना तो इसका। सर हो जाता है, कौन सिस्टम कनेक्ट हो रहा है कौन अप डाउन हो रहा है वो उतना हम लोग तो। हाँ, तो वो बीप साउंड देगा, अगर आप चाहते हो आपके टेलीग्राम पे भी ये अलर्ट भी दे देगा कि ये सिस्टम कनेक्ट हुआ है, एक डिस्कनेक्ट हुआ है। आप इसमें अपनी टेलीग्राम का बॉट डाल दोगे, वो उस हिसाब से बहुत काम नहीं है, हम अकाउंट वो इंटरनेट बता देता है कि अब आईपी ऑफ हुआ चाहे कौन आईपी अभी कनेक्ट हुआ और वो क्या हाँ यूज कर रहा है, मतलब किस पोर्ट से, मैक एड्रेस, ये सब बता देता है, लेकिन वही है कि एक्यूरेट डाटा के लिए सब खोजता है वो। एक्चुअली क्या है सर, एक्यूरेट डेटा आपको, वो बात की स्टेप है ना, पहले ऐसे ऑटोमेट तो करो सर, आप जैसे टेलीग्राम पे अलर्ट मंगा लो, आप घर पे हो अपने, अब आप देखो कि कौन सा पीसी कब चालू हुआ है, या आप घर से कैसे देख सकते हो, वो पहले इस पे डिस्कस करो ना, फिर आप जो है कि फिर अंदर घुसना इसमें, फिर आप देखना कि कौन सा पीसी कौन वो सा प्रोग्राम यूज कर रहा है लाइव, वो राउटर के थ्रू आपको मिलेगा डेटा, ट्रैफिक एनालिसिस डैशबोर्ड होगा, टाइप का वायर हम शार्क एक बना टूल देते आता है। वायर शार्क टूल है हैं। मैं सर, बोल रहा हूँ उससे सर आप अपना पीसी कनेक्ट कर दो और पीसी से फिर सारे अदर पीसी कनेक्ट कर दो आप।
फिर आपके पीसी में हाँ 7-8 सर, मैं डेटा आते हैं। मंडे को सर आपको कोड भेजूंगा, एक बार देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आप डिस्कस नवादा हमें भी शेयर करोगे? एक ग्रुप क्या? बना लेना, जो जो इंटरेस्टेड है उसमें अपन ऑटोमेट किया करेंगे चीजें। ठीक सर, ठीक है। हाँ सर ये वाला ठीक है, ये जो टेलीग्राम पे जो मैसेज देने वाला है ये ठीक है, ठीक लगा सर। हाँ कि कौन से आईपी ऑन हो रहे हैं, कौन से आईपी ऑफ हो रहे हैं। सपोज हाँ क्या होता है कि समटाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बीसी इज द मेन इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। या फिर अगर हम डीएम सर के यहाँ कोई आईपी वगैरह दिए हुए हैं तो हाँ उसमें हमारा जो है मेन मॉनिटरिंग होगा ये कि मेरा जो है से बीसी चल रहा है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ कैमरा, आईपी मेरा नेटवर्क तो नहीं गया, वो तुरंत बता देगा और हम लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज अगर है तो मेरे लिए तो नया है सर, अगर ये चीज आप बताएंगे तो बेस्ट होगा सर, और सभी के लिए, मेरे नहीं, ख्याल से सभी के लिए बेस्ट। वो सर करेंगे नवादा सर से ही डिस्कस, बोल उसमें हैं? वो कोई इशू नहीं है उसका, सर वो नवादा से ही ऑटोमेट बोल रहा होंगे। हूँ हाँ कि हम लोग जो बॉट से जो मैसेज वगैरह लेते हैं कोई भी अगर प्रोग्राम बना करके, तो बॉट क्या है कि हर 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिक फिर ऑफ हो जाता है। तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ है या ऑन है? एक मिनट सर, वो थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। मैंने बोला कि बॉट से जो हम लोग मैसेज मंगाते हैं तो बॉट भी ऑटोमेटिक 10-15 मिनट में ऑफ हो जाता है, तो वो मैसेज तो फिर भेज नहीं पाता है। एक सेकंड सर, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं ईयरफोन कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही होगी सही? हाँ, जी मैं जी बोल रहा हूँ सर, कि हम लोग जैसे कि डाउन टाइम रिपोर्ट का बना के एक साइड पे रखे हैं, और बॉट का आपने बोला कि टेलीग्राम बॉट पे कर लीजिए, पर बॉट भी क्या है 10-15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो बैकएंड में चलता नहीं है, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन हो पाएगा? नहीं नहीं, ऑफ कैसे हो रहा है सर? मेरा तो कंटिन्यूस चल रहा है सर, पूरे दिन आपको पीसी ऑन अपना छोड़ना पड़ेगा, ऑफ नहीं होगा सर। बॉट अगर ऑफ हो रहा है तो उसमें कोड में इशू है। अब उससे एसी में आप बोल देना कि बॉट इज गेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली, प्लीज मेक इट लाइक चेक एवरी 67, तो वो स्लीप नहीं होगा। अब ये मेरे को बीप बीप की साउंड दे रहा है, अब बार बार ये बॉट बैक एंड पे चल रहा है, कोई अब आ रही है, सही आ रही है? हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, आगे बताइए। बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही सही है। आ रही है। सर साउंड आपका बहुत कम है सर, क्लियर नहीं आ रहा है सर। साउंड आउटपुट ईयरफोन किया हुआ है सर, आनी चाहिए, आवाज सही आनी चाहिए। अधिकतर सर माइक्रोफोन में आपका आउटपुट आवाज सेट है। आवाज स्लो है, स्लो है। बहुत सर कम है पहले सर। की आवाज सही थी आपकी, आपको नहीं आ रहा है, पहले सही था। अब ठीक है क्या? अभी एक्चुअली ठीक क्या है है कि सर। वेबकैम का माइक, वेबकैम का ही माइक था, तो क्या ही कर, चेंज करके देख लिया, वो हो नहीं रहा चेंज। तो फिर आगे चले सर, ये हो गया क्लियर कैसे क्या है इसमें? बोर्ड बनाया आपने? हाँ सर, ठीक ठीक सर, आगे बढ़िए। ये लॉक्स आ गए सर अपने पास, ये अलर्ट आया, प्रॉपर नहीं दे रहा, ये दे रहा है आपका ब्रॉडकास्टिंग के, ब्रॉडकास्ट कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। ये 200 आईपी कहाँ का है? आपका है क्या किसी का? पटना सिटी का है क्या? 200 पटना का है सर।
इस तरीके से चलेगा इसको, और अपन और रिफाइन कर सकते हैं। ये एंटी ग्रेविटी टूल है, इसको आप यूज करना। जियो का है तो आपको मिल जाएगा इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। बाकी अगर किसी के पास एयरटेल है तो परफेक्सिलिटी है टूल, वही बेस्ट है। ये है परफेक्सिलिटी, एयरटेल वालों के लिए। ये लेटरल मूवमेंट था सर, ये लेटरल मूवमेंट मतलब एक पीसी का एक्सेस मिल गया तो उसके अंदर फिर और क्या करेगा, जैसे हैकर है तो वो और अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो कैसे अपन उससे बच सकते हैं। ये बहुत क्लोज करना पड़ेगा, ये बीप की साउंड दे रहा है। तो सर चलते हैं फिर सिम टूल्स पे। सिम है आपका सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट। ये आपका टूल है ग्राफिकल इंटरफेस, ये प्री डिफाइंड आपका ये टूल है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है नेटवर्क पे तो आपको अलर्ट आएंगे ग्राफिकल इंटरफेस पे। जैसे अभी हमने बहुत बनाया तो ये GUI नहीं था, वही अच्छा चल रहा था। ये आपका ग्राफिकल इंटरफेस है। तो इसके लॉक्स होने चाहिए 180 डेज रोलिंग। दिस इज अ हार्ड सर्टेन रिक्वायरमेंट, नॉट ऑप्शनल। DDoS mitigation must be covered by both on-premises devices and ISP level services with a clear SLA. So DDoS is your distributed denial of service. So particular एक PC, जैसे एक PC है, ये सर्वर हो गया मान के देखो, सर्वर, और ये नंबर ऑफ बॉट्स मैंने बना दिए। ये नंबर ऑफ बॉट्स क्या करेंगे, इस पे फ्लड पैकेट कर देंगे, फ्लड पैकेट पिंग करते जाइए कंटिन्यूअसली, तो इसका जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा। तो इन दी एंड क्या होगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो ये DDoS अटैक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगर ये एक ही कंप्यूटर पर पर्टिकुलर करता फ्लड अटैक तो क्या होता कि डिनायल ऑफ सर्विस होता, DDoS अटैक। टेलनेट मस्ट बी डिसेबल्ड एवरीवेयर। कोई टेलनेट करेगा, जैसे किसी कंप्यूटर ने एक्सेस ले लिया आपका, तो वो टेलनेट करके और कोड देख लेगा ओपन है कि नहीं है, तो वो डिसेबल होना चाहिए। यूज SSL और IPsec फॉर ऑल रिमोट कनेक्शंस। IPsec आपका VPN प्रोटोकॉल है। IPsec VPN इज फॉर रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस के लिए VPN होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, बेसिकली कि डेटा आपका VPN के थ्रू राउट करेगा, फिर वो उसके लॉग्स क्लियरली मेंशन होंगे कि किसने कभी कनेक्ट किया है, क्या कनेक्ट किया है। और VPN पे आपका इंटरनेट भी बंद हो जाता है तब, तो VPN के लिए इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। और ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन ऑल VPN अकाउंट्स। MFA होना चाहिए। VPN लॉग्स मस्ट फेड इनटू सिम। सो VPN के लॉग्स सिम टूल में आएंगे, वही ग्राफिकल इंटरफेस ऑटोमेशन टूल में। Remote tools like AnyDex and TeamViewer are completely blocked on government networks. ये होना चाहिए। अब जैसे वाईफाई के बारे में बात करते हैं तो WPA2 यूज हो रहा है, WPA3 हो रहा है, और हायर इज open access point APs are never permitted under any circumstances. So access point जो है open नहीं होना चाहिए। और guest WLAN must be separated from SSID with internet only access. गेस्ट के लिए अपन SSID WLAN
वाईफाई के लिए ओनली इंटरनेट एक्सेस देंगे, कोई और उसको अलग ही सेपरेट करना। गेस्ट एक्सेस किसी ने लिया होगा तो उसे पता होगा कि अपने इंटरनल नेटवर्क को पिंग नहीं करता। Traversal into internal network for sensitive or clarified organization. Wi-Fi is not permitted at all. Even Bluetooth and NFC must be visible. CCTV footage is sensitive zone must be retained for minimum 180 days. So basically 180 days तक आपके पास recording चाहिए बंद करवा दो 15-20 मिनट। The diagram shows the recommended zone separation. Internet to parameter firewall to DMZ. DMZ is dematerialized zone to internal LAN to server zone to SIM admin. Each zone must use different OEM, original equipment management, firewalls, and HA. This prevents a single vendor vulnerability from compromising both layers. The proxy server acts as a single choke point for all internet traffic, no direct internet access for endpoints. Basically, identity access management. Every employee must have a unique user ID. Shared credentials are prohibited. Access must be reviewed every 6 months and deactivated immediately on transmission of suspicious activity. RBAC, rollback access control person access metrics. You get access to what map to roles. National SSO single sign-on integration is mandatory. Param, Pariche, Jan Pariche or DigiLocker. Password, minimum password should be of 8 characters. Complex. Changes every 120 days. So आपका ये स्क्रिप्ट आप बना सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर में। आपको पासवर्ड पॉलिसी पर 80 डेज में पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। Database password required minimum 15 characters. Auto timeout at 15 minutes. Must be built into the entire SDLC. No added at the afterthought of deployment. All government website must be HTTPS and with a valid SSL and TLS certifications. तो HTTPS आप जानते हो पैडलॉक बन के आता है, पोर्ट नंबर इसका होता है, HTTP का होता है 80 HTTPS का, और 3 HTTPS वाली वेबसाइट को ही आपको ट्रस्ट करना है। VPN must have at least annually or whenever there is a change in the VAPT. Sorry, VAPT is your vulnerability assessment penetration testing. So VAPT must happen at least annually or whenever there is a change in application. Developers के लिए कोई whenever whatever is earlier. APIs must be included in every VAPT. API security is not optional. For mobile applications, implement SSL training to prevent MITM. MITM is man in the middle attack. So Wireshark will come under this MITM attack if you want to perform MITM attack. So if a particular phone is connected to a router, you can check whether this person, but the website this person is using the Wireshark to prove. For mobile application, SSL ping will be MITM attacks. Address on. सर ये MITM अटैक्स क्या होता है, किस टाइप का होता है? ये बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक। तो आदमी आप खड़े हो जाते हो बीच में, ये कोई यूजर हो गया और ये कोई पर्टिकुलर राउटर हो गया, नेटवर्क डिवाइस, इसके बीच में आप आ गए, इसके थ्रू आ गए वायरशार्क के थ्रू। तो अगर इसे रोकना होगा तो क्या उपाय करना होगा?
सर रोकने के लिए तो यही है कि MITM जैसे कोई यूजर आएगा पर्टिकुलर बीच में तो उसकी भी डिवाइस आ जाएगी उसमें, जैसे कि नई डिवाइस कनेक्ट हुई। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस में आ पाए बीच में। Sensitive data must be classified first, then encrypted, both at rest and in transit. DLP data loss prevention solution must be deployed and actively monitored. Backup must be stored physically separate from the production server. Offsite storage is required. Personal USB device cannot be connected to systems and vice versa. Critical system data needs increment backup daily. High critically tabs must may lead early backups. बेसिकली डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए आपको अर्ली बैकअप लेना होगा, अर्ली फ्रीक्वेंटली लेना होगा। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। NDA must be signed before any third party access to a government system is granted. Non-disclosure agreement should have to be there. Contract must include SBOM, software bill of materials, so you know every component in vendor software. Cloud follows a shared responsibility model. Government entity must understand what they own versus what the CSP manages. Application must only be hosted at government data center or MIT Ministry of Information Technology implemented cloud service providers, not a random public cloud. तो बेसिकली इसको फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये आपके लिए सर मुंगेर से बोल रहे हैं जी। सर। राउटर का ये लॉगिंग पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा? हाँ सर, वो मेरे को भी चाहिए था। वो आपको दिया जाएगा सबका। अभी एक वो जाएगा, वो नेटवर्क टीम जब लेगी ना मीटिंग, तो वो आपको सर आप ये क्वेश्चन रेज करना राउटर का एक्सेस। ठीक। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर बंद करते हैं 2-3 सेकंड में। चलो सब अपना ये टूल यूज करना है, एंटी ग्रेविटी। सर ये एंटी ग्रेविटी अभी नेशनल नेटवर्क पे हम लोग लोड कर रहे हैं, पर सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ वो ब्लॉक है सर, अपने आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई और डाउट है? नहीं सर ठीक है। और ये PPT सर शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ PPT में इन दी एंड आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो, इस पे काम चल रहा है सर PPT पे। जैसे 1-2 सेशन और होंगे तो आपको मिल जाएगी फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।